ठीक है। इससे पहले देखें हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हाउसडॉर्फनेस की। हाउसडॉर्फनेस। So as I told you that I mean we have noted some differences between metric spaces and topological spaces. Though every metric space is a topological space, but a topological space need not be a metric space. And another important difference is that, see, in a metric space, limit is always going to be unique. And not only limit, see, whenever any sequence converges, it will converge to a unique limit. But in a topological space, it may converge to more than one limit. It may converge to more than one limit. So we have seen that if we put Hausdorff's condition, that I will explain in detail today, that if we put Hausdorff's condition on topological space, suppose your topological space is such that it is going to satisfy Hausdorff's condition, it is Hausdorff, then whenever a sequence will converge, it will converge to unique limit. Not only this, in metric space, we have studied that finite sets are always closed. But in topological space, it need not be closed. For example, we have seen this. See, we have seen this example x equal to, say, let us take this space, and on this let us put the topology as, say, phi x a b b b and c, b and c. So you can see that singleton b is not closed. Singleton b being finite is not closed. So in this example is very good example. There are several examples, but why? Because its complement is not open. Its complement, the complement of this singleton b in ABC is AC, which is not member of the script T. I mean topology present on X is not member of script T. So another reason is that, see, also this space is not Hausdorff. Why? Because you can see that for A not equal to B, for A not equal to B, A and B are two distinct elements. Now look at all open sets which contains A. So that is AB and X. Open sets containing A are AB and X. And look at all open set containing B. Look at all open set containing B. So open set containing B, open set containing B is singleton B, B, C, and X. So in all cases, you can see that intersection is not disjoint. In all cases, you can see that intersection is not disjoint. I mean, if you take intersection of AB with B, again it is going to be B. Intersection of X with B is again going to be B. Intersection of AB with BC is going to be B. So I don't have any open set containing A and any open set containing B such that their intersection is disjoint. So I can say that this space is not Hausdorff. So whenever a space is, a topological space is not Hausdorff, then finite set may be closed, may not be closed. Finite set may be closed, may not be closed. So this we have already covered. Now I am moving to the next question. Basically today I am going to discuss some examples of this, say, topological properties. So convergence of a convergence in topological spaces. Convergence in topological spaces. Convergence in topological spaces. Okay, so first of all, let me recall once again definition of this convergence in topological spaces, and then using that we will see several examples. So let me write that then arbitrary topological space, yes,
My voice is clear to you all? सर थोड़ा डिस्टर्ब है सर। कट कट के आ रही है ये आवाज कैसे? हाँ वही तो। So in an arbitrary topological spaces, one say that a sequence x1 x2 of points of x converges to a point x of x topological, provided that corresponding to each neighborhood u of x corresponding to each neighborhood u of x. I am following the notations of J.R.Munkres, and already I told you that in J.R.Munkres neighborhood is referred for open set. So corresponding to each neighborhood u of x, there is a positive integer, say natural number, and not such that xn belongs to open set u, or say in terms of J.R.Munkres neighborhood u, for every n greater than equal to n naught. I mean, there must exist at least one n naught. For each open set, there must exist at least one natural number n naught, such that for all n greater than equal to n naught, every member of the sequence start lying inside u, for all n. तो इस तरह के एग्जाम्पल हमने देखे थे, ये एग्जाम्पल. And we know that in R and R2 a sequence cannot converge to more than one point, but in arbitrary topological space it can. I mean, with respect to standard topology, we have already studied. Now let me explain all this with the help of example. See, okay, let us start from a sequence, say 1 by n, sequence 1 by n. So on R, see, already I have given you the proof of that in R with respect to with respect to standard topology, already we know that sequence 1 by n will converge to 0, Is there any doubt? Because the basis member for generating standard topology is collection of all open intervals AB such that AB belongs to R. And all other open sets in a standard topology will be generated by taking union of the basis members. So that we already know, everything I have already covered. Now here you can see that whatever neighborhood, I mean, either it is a basis member or union of the basis members, whatever neighborhood we will construct, we will take from Archimedean property of real numbers. There always exists some n naught such that 1 by n is less than epsilon. I mean, in between this whatever neighborhood you take containing this 0, whatever neighborhood AB or union of the type of the intervals AB we have containing 0, then from Archimedean property of real number, let me recall here Archimedean property of real number. Archimedean property of real number. This one is a very example I have given already. I have explained all these things in detail. Just here I want to recall that according to this, for every epsilon greater than 0, there exists n naught belonging to n such that 1 by n is less than epsilon for every n greater than equal to n naught. I mean, whatever epsilon positive, whatever real number you choose, for every positive real number, there always exists some natural number such that 1 by n can be made less than epsilon for every n greater than equal to n naught. For example, if I choose epsilon equal to say 0.3333, then you can take n naught is equal to ceiling function of this 1 by epsilon, that is 4. Okay, 1 by 0.33. So you can take here this one. So for all n greater than equal to n 4, this n naught comes out to be 4. So I have at least one n naught such that 1 by 4, you can see that if even I choose n equal to 4, then also 1 by 4 is less than 0.333. If I choose n equal to 5, then again 1 by 5 is less than 0.33.
3 and so on. So for all n greater than equal to n naught, 1 by n is less than epsilon. So whatever epsilon we choose. Now what will happen that, see, b is obviously b is right to 0. So if you can consider this b is as epsilon, because that is just a notation. B is a real number containing, so open interval ab, if it is containing 0, then in this interval I always have members of the type 1 by n. Why? Because 1 by n is less than epsilon. So in between 0, sorry, I mean in between whatever b we will choose, I always have in between 0 and b, because b is lying right to 0, so b is greater than 0. So if you replace this epsilon by b, then in between 0 to b, I always have how many choices for 1 by n? For n greater than equal to n naught, there are infinitely many choices. There are infinitely many choices. So in every interval we have intervals of this type 1 by n. So already by definition of Archimedean property of real number, I have at least one n naught for each neighborhood, because whenever you will construct neighborhood, you have to containing 0, you have to move right and left to it. Actually, whenever you are discussing and you know the topology, basis for the topology, then bring that definition to the basis, because all other open sets are going to be generated by the basis members. So there is no need to write, I mean, in general open set. So, because if it holds for basis, then all other open sets are going to be generated by that basis members. So it will also hold for them. So as per definition, for each number, if we are claiming that the limit of 1 by n is 0, then for each neighborhood u of x, so in place of this, we need to look at all neighborhood containing 0, and for each neighborhood I need to claim that there exists at least one positive integer n naught, such that xn belongs to u for every n greater than equal to n naught. So that comes from Archimedean property of real number. So detail of this I have already explained in my real analysis lecture. You can go there, you can visit playlist and watch all those lectures. ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है, मैं यहाँ से स्किप करूं, क्योंकि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का तो आप कई बार रियल में भी पढ़े हो, मेट्रिक में भी पढ़े हो. Not let me change the topology on R and look what will happen. And remember, it will converge to only 0, not other points. Why? Because let us claim that 1 by n will converge to 1. So what will happen? That here I have 1, here I have 0. Let me make this cut. So you can see that for there exists no n naught, such that for all x n greater than equal to n naught, xn will start lying within this interval. I mean, you can take this one as half and this one as 1 by 3, because it should hold for every neighborhood. So if you take this neighborhood, then you can see that there is no there will exist no n naught, such that for all n greater than equal to n naught, the members of xn will belongs to u. कोई ऐसा n naught मिलेगा? जैसे मान लो 2 लेते हो, तो 1 by 2 तो इसके बाहर हो गया ना इंटरवल से, n equal to 3 पे भी बाहर हो जाएगा, तो कोई ऐसा n naught नहीं मिलेगा जिसके बाद के सारे n के लिए ट्रू है. So in this way you can show that it will converge to only 0. It is not going to converge to 1. So that already I have detailed explanation. For detailed explanation, you can visit a playlist of this real analysis. You can I have already explained this in detail. But the claim of this is from Archimedean property of real number, because Archimedean property claims existence of such n naught, which we require here in this definition. So that is already given to us. Now, question is, what will happen if in place of standard topology, if I have, let us say, indiscrete topology, 1 by 1. So let me rub this one. याद रखना, ये जो आपने लगाया ना, ये हमेशा हम कहाँ से क्लेम करोगे? ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ही इसको क्लेम करेंगे. ओके, Archimedean property of real number. Now my claim is that एक्चुअल में मैं चाहता हूँ ऊपर ये रिजल्ट जो लिखा है ना, चाहता तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूँ, लेकिन होगा क्या कि मैं चाहता हूँ आपके पास ये ऊपर सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखिए और आप उससे कंपेयर करके रिजल्ट पढ़े. Now see, all these things are very easy. Only you need to take care of the open set. My claim is that on R, let us equip R with indiscrete topology. Indiscrete topology. Indiscrete topology. So we know that indiscrete, the members of indiscrete topology are
phi and the full space R. Is it? आपको मालूम है इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी के ओपन सेट्स क्या होते हैं? फुल स्पेस एंड होल स्पेस एक्स इटसेल्फ. सो हमारे केस में क्या एक्स की जगह क्या आर है? डाउट तो नहीं आता किसी को? ये बोलते रहे, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सो रहे हैं. यस रेहान, आवाज तो मेरी आ रही है? यस सर आ रही है. Okay. Now my claim is that this sequence 1 by n, this sequence 1 by n is going to converge to all real numbers where x belongs to R. ये sequence 1 by n जो है ये हर एक रियल नंबर को कन्वर्ज करेगा. Not only 0, it is going to converge to every real number. Question समझ में आया? And also indiscrete topology is not Hausdorff. So it may have chances that it converges, any sequence may converge to more than one limit. Whereas standard topology is Hausdorff. So whenever it is converged, it will converge to unique limit. That is the reason why 1 by n converges to 0. अब ये कैसे क्लेम करेंगे कि sequence 1 by n is going to converge to every real number? चलो आपको एक रियल नंबर बताओ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद देखते हैं. आप कोई भी एक रियल नंबर बताओ जिसको मैं क्लेम करूं. लेट अस क्लेम दैट 1 by n converges to 2. ठीक है, लेट अस क्लेम दैट सीक्वेंस 1 by n converges to 2. 2 कोई रियल नंबर है, स्पेस के ही मेंबर को कन्वर्ज करेगा ना. नाउ एज पर डेफिनेशन लुक एट ऑल नेबरहुड कंटेनिंग 2. 2 को कंटेन करने वाले जितने नेबरहुड, तो क्योंकि जेआर मुंक्रेस के डेफिनेशन नेबरहुड ओपन सेट को रिफर किया हुआ है, सो लुक एट ऑल ओपन सेट कंटेनिंग 2. तो 2 को कंटेन करने वाले एक ही सेट है R. इस टोपोलॉजी में, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में, देयर इज ओनली वन सेट कंटेनिंग 2. एंड फॉर ईच नेबरहुड u of x there must exist at least one n naught such that xn belongs to u for every n greater than equal to n naught. तो सीक्वेंस 1 by n देखो 2 को कन्वर्ज कर रहा है, ये मुझे क्लेम करना है ना. सपोज सीक्वेंस 1 by n converges to 2. So how you will show that? So look at all open set. So only open set containing 2, only open set containing 2, containing 2 under indiscrete topology is R itself. और ये बताओ 1 by n इस सीक्वेंस के जितने मेंबर हैं वो रियल नंबर के ही को ही तो यूज करके बनाया हुआ है. एवरी मेंबर, आई मीन वेदर सपोज x1 is 1, आई मीन x2 is 1 by 2, x3 is 1 by 3. तो सीक्वेंस के जितने मेंबर्स है वो है तो रियल नंबर. तो 1 by n इस सीक्वेंस के हर एक मेंबर, आई मीन एवरी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस इज क्लियरली मेंबर ऑफ R फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. होगा कि नहीं? तो ये n नॉट मैंने एक 1 बता दिया. आपको ये तो शो करना है कि हर एक नेबरहुड के लिए क्या मिलना चाहिए कि n नॉट, ये मुझे शो करना है. सो दैट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज सीक्वेंस इज ऑफ रियल नंबर. सो फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ n, एवरी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस विल बी मेंबर ऑफ R. सो दिस इज ऑब्वियसली ट्रू. नॉट ओनली इन केस ऑफ ट्रू, सपोज this sequence 1 by n is always going to converge to 4 because the only set containing 4 is R and every member of the sequence will be member of this one for all n greater than equal to 1. So in general I will say that sequence 1 by n will converge to every real number under indiscrete topology. समझ में आ गया यहां तक? किसी को डाउट है तो पूछ ले यहीं पे. And another important thing we have observed that indiscrete topology is not Hausdorff. आप बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन को फॉलो करो, कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं आगे बढ़ूं और अब अभी क्लियर हुआ, कोई डरने की बात नहीं है. अभी तो मैंने सिर्फ 2 टोपोलॉजीज यूज की, अभी और देखते हैं तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, मैं इसको भी मिटाता हूं. अब हम लोग दो सेम पहले एक सीक्वेंस को लो और सब में देखो किस तरह चेक करना है, पहले आप ये समझ लो. अब मैं इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी की जगह पे कोई और टोपोलॉजी लेता हूं. पहले कुछ एग्जांपल हम लोग करके देख ले ताकि आपको कैसे प्रोसीड करना ये समझ में आ जाए. उसके बाद फिर हम इस रिजल्ट को डिफरेंट टोपोलॉजिकल स्पेस में, आई मीन फॉर इन जनरल, ये तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लेके देखा,
इसे हम जनरलाइज करेंगे कि किस तरह का सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में। अब बताओ, एक काम करो, डिस्क्रीट लें, आर पे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। पहले ये बताओ डिस्क्रीट टोपोलॉजी के मेंबर्स क्या होते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? पावर सेट ऑफ आर। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? पावर सेट। और पावर सेट में, and in discrete topology we have seen that every set is open as well as closed. Discrete topology power set है ना, power set is collection of all possible subsets of R, वो आप जानते हो। और इसका बेसिस क्या होता है? This is generated by collection of all singletons. Discrete topology generated by collection of all singletons. तो अब ये बताओ कि मुझे my claim is that sequence 1 by n will not converge to any of the real number अंडर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सेम सीक्वेंस से टोपोलॉजी चेंज करने से ये सीक्वेंस किसी भी रियल नंबर को कन्वर्ज नहीं करेगा। ये सीक्वेंस किसी भी रियल नंबर को कन्वर्ज नहीं करेगा। पहले आपको ये बताओ कि कोई मुझे लिमिट बोलो किसी को क्लेम, जैसे क्या 1/n 0 को कन्वर्ज करेगा? चलो एक क्लेम करते हैं। नहीं माय सर। क्लेम इज दैट not let us start for that. My claim is that suppose 1/n converges to 0, ठीक है। अब ये बताओ कि 0 को कंटेन करने वाले कितने ओपन सेट हैं? कुछ ओपन सेट आप लिस्ट करो 0 को कंटेन करने वाले। सर सिंगलटन 0 ले लीजिए सर। वेरी गुड, सिंगलेटन 0 है। और सर और ले लीजिए 0 हाँ 1 जितना हाँ बना सकते हैं सर। हाँ, आप ऐसे ले लो -1 1, ये भी तो है, ये भी है -1 to 1, यस सर। ठीक है, ये भी है -1 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे 1 पे क्लोज लगा दो। ये सारे हैं कि नहीं? ऑल दीज आर ओपन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इज इट? किसी को डाउट तो नहीं है कि ये सारे सेट ओपन है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में? किसी को डाउट है तो फिर से पूछने में दोबारा रिवाइज करा दूंगा। मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं कुछ सेट। 0 बिलोंग्स टू दिस, -1 to 1 यूनियन 2 to 3, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारे ओपन सेट्स हैं। So in discrete topology, all sets are open as well as closed. Important thing is that in discrete topology, every set is open as well as closed. तो हमें क्योंकि सिर्फ ओपन की जरूरत है तो मैं लिखता हूं every set is open. Now since every set is open, so again its complement is going to be closed, and since it is power set, so again that will be member of the set. So I can, in general, I can say that in discrete topology every set is open as well as closed, ठीक है। अब जैसे आपको प्रूफ करना हो कि -1 से 1 ओपन है, तो आप लिख सकते हो -1 to 1 can be written as union of singleton x where x belongs to -1 to 1. और आप जानते हो singletons are open with respect to discrete topology and arbitrary union of open set is open. This is the reason why open interval -1 to 1 is an open set in R under discrete topology. ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या है? ओपन। क्लियर हुआ यहां तक? भी बोलते रहें, कुछ अगर डाउट हो तो पूछ लेना। आप लोग ऐसे बिल्कुल साइलेंट ना रहें, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर मैं या तो ज्यादा पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको पीछे लेक्चर में कई बार करा चुका हूँ। यहाँ ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट एक लाइन में लॉजिक बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ ताकि पीछे की चीजों से मैं जोड़ सकूँ इनको, ठीक है। So I have listed here some of the open set containing 0. Now as per definition, for each neighborhood u of x there is a positive integer n naught such that xn belongs to u for all n greater than equal to n naught. हर एक ओपन सेट के लिए आपको कम से कम एक n naught ढूंढना है। My claim is that 1/n will not converge to 0. In general, I will later on prove that not only to 0, it is not going to converge to any of the real number. तो पहले हम 0 पे देखते हैं। तो अगर 0 को ये कन्वर्ज कर रहा है, so look at all possible open sets containing 0 in discrete topology, because our set is equipped with the discrete topology. And for each open set, you have to find some n naught such that the sequence of the members of the sequence start lying within that open set containing 0. अब देखो और तो ठीक है, लेकिन जब सिंगलेटन का केस होगा ना, तो
अब क्या इस केस में आप बता सकते हो कोई ऐसा मेंबर, ये 1/n सिंगलेटन 1/n के मेंबर सिंगलेटन 0 के अंदर लाई करें, इसके लिए क्या आप कोई एक ऐसा n नॉट बता सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये है कि whether there exists some n naught such that, tell me at least one n naught, I mean at least one natural number such that for every n greater than equal to n naught, members of the sequence 1/n start lying within this set 0. इस सेट के अंदर सिर्फ 0 है. n equal to 1 रखो, n equal to 1 रखो, 1 इसके अंदर नहीं है. n equal to 2 रखो, 1/2 इसके अंदर नहीं है. n equal to 3 रखो, 1/3 इस सेट के अंदर नहीं है. n equal to 4 रखो, 1/4 नहीं है. Can you tell me some n naught? No. No sir. But definition demands that for each neighborhood, for each open set u of x, there exists. So to fail, I need to show that there exists at least one open set for which I don't have any n naught, such that the members of a sequence xn start lying within that neighborhood. समझ में आ गया? तो प्रॉब्लम डिस्क्रीट टोपोलॉजी में प्रॉब्लम सिंगलेटन क्रिएट करेगा. हो सकता है और भी सेट हो, लेकिन हमें फेल करने के लिए सिर्फ एक सफिशिएंट है. फेल कराने के लिए मैंने एक सेट बता दी, क्योंकि ये भी तो नेबरहुड है, ओपन सेट है कंटेनिंग 0. सिंगलेटन इज आल्सो ओपन सेट कंटेनिंग 0 अंडर डिस्क्रीट टोपोलॉजी, for which I don't have any n naught. So you will say that there exists no such n naught. You can write here that there exists no such n naught such that xn belongs to u for every n greater than equal to n naught. There exists no such n naught. There exists no such n naught belonging to n. और यहाँ कैपिटल n naught लिखा है तो कैपिटल n naught ले लो. Such that 1/n belongs to singleton 0 for every n greater than equal to n naught. तो फेल कराने के लिए एक बहुत हो गया. Now अब इसे जनरलाइज करना है आपको, तो आप क्या कर दो, 1/n की जगह पे कोई रियल नंबर यहाँ x कर दो और यहाँ सिंगलेटन x कर दो. ये x कर दो, इसको सिंगलेटन x कर दो. So again it will help for fail for singleton x. So in general I can say that a sequence with distinct, देखो इस सीक्वेंस की क्या खासियत थी, इसका पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 1/2 है, 1/3 है, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं. So in general I can say that those sequences which have distinct terms will never going to converge to any of the real number in R under discrete topology. कह सकता हूं मैं that sequence 1/n is not going to converge to any real number. Yes. क्या हुआ, कोई डाउट है आप लोग को? सर यस. सर ये जो कन्वर्जेंस टोपोलॉजिकल स्पेस में है सर, और रियल हम अगर लेके चले सर, तो रियल हाँ थोड़ा, हाँ तेज बोले, आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है. हाँ क्या कह रहे हैं सर? ये जो कन्वर्जेंस का पॉइंट है सर, अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस और रियल एनालिसिस को कंपेयर करें सर. हाँ बिल्कुल. हाँ सुन रहे हैं सर? आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही, बताएं. सर तो जैसे रियल एनालिसिस में सर, मतलब कोई सीक्वेंस था तो उसमें हमको दिखता था, मतलब कि अगर कोई पॉइंट अगर है वो कन्वर्ज कर रहा है तो उसके अराउंड हमको मेंबर्स जो कोई एन नॉट मिलेगा, जिसके अराउंड वो मेंबर्स जो होंगे वो डेंस होंगे. हाँ हाँ. मतलब मेंबर मिलेंगे वो इंटरसेक्ट. अब ये टोपोलॉजिकल स्पेस में सर डेफिनेशन तो है, पता है, लेकिन क्या हो रहा है सर, किस सेट्स पे कैसे ले रहे हैं, ये नहीं दिखता है सर. नहीं, उसी को दिखाने के लिए बताया ना. प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि बाय चेंजिंग द टोपोलॉजी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन सेट. वहां स्टैंडर्ड में क्या था कि ओपन सेट क्या था, आई मीन नॉन ट्रिवियल ओपन सेट जो थे वो ओपन इंटरवल थे. इन आर देखो रियल एनालिसिस में क्या करते हो, इन आर अंडर यूजुअल मेट्रिक पढ़ते हो, तो यूजुअल मेट्रिक बेसिकली स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जनरेट करता है. तो वहां पे जो ओपन सेट होंगे या तो वो नॉन ट्रिवियल ओपन, फाई और आर तो ऑलवेज ओपन होते हैं किसी भी सेट में. Yes, या तो ओपन इंटरवल ए बी होगा या ओपन इंटरवल ए बी का टाइप का यूनियन होगा, ए बी यूनियन सी डी टाइप के होंगे. लेकिन यहाँ पे अब देखो जैसे सिंगलेटन एक्स है, तो अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिंगलेटन एक्स ओपन होता है, बट सिंगलेटन एक्स इज नॉट ओपन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं आया. लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि टोपोलॉजी चेंज करने से ओपन सेट्स का नेचर चेंज हो गया. जो सेट सिंगलेटन एक्स देखो ओपन नहीं था उसमें स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिंगलेटन एक्स ओपन है. तो यहां प्रॉब्लम आ गई कि, और डेफिनेशन कहता है कि हर एक ओपन सेट एक्स को कंटेन, जिसको आप लिमिट क्लेम करें उसको कंटेन करने वाले हर एक ओपन सेट के लिए कम से कम एक इंटीजर मिलना चाहिए, ताकि
उस इंटीजर के इक्वल या उससे बड़े सारे n के लिए एक्शन के मेंबर उस नेबरहुड में जाने चाहिए। तो अब इसे फेल करना तो मैंने एक ये दे दिया आपको इन जनरल। सो रिमेंबर दैट इन जनरल आई कैन से दैट अ सीक्वेंस विथ डिस्टिंक्ट टर्म, लेट मी राइट हियर दैट अ सीक्वेंस, ऐसा है ना, पहले आप, मैं आज पढ़ा दे रहा हूं, इसको आप एक बार दोबारा सोचो वर्ड बाय वर्ड, आप ओपन सेट बनाओ। इसलिए देखो अब तक के टोटल लेक्चर्स में मैंने आपको इतना ज्यादा, कम से कम आज 20 या 21वां या 22वां लेक्चर है, अब तक मैं सिर्फ आपको डिफरेंट तरह की टोपोलॉजी और ओपन सेट बताते चला गया। उसकी इतना एम्फेसाइज मैंने इसीलिए किया ताकि आप कल के दिन जब मैं ये ओपन सेट बताऊं कि कौन सा किस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन है, ताकि आपको वहां पे बिल्कुल समझ में आए चीजें, क्योंकि डेफिनेशन तो सेम है, सिर्फ वहां पे बॉल्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ओपन सेट से रिप्लेस कर दिया। जो मेट्रिक स्पेस में आप बॉल्स या बॉल से जनरेटेड जो ओपन सेट थे उनको यहाँ पे आर्बिट्री टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि बॉल्स का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये बताया कि हम क्योंकि मुंक्रेस जेआर मुंक्रेस का स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें नेबरहुड को क्लियर कट लिखा है, बेसिकली दे आर राइटिंग इट एज ओपन सेट, सो यू कैन रिप्लेस दिस डेफिनेशन बाय ओपन सेट। ठीक है, तो सो आई कैन से दैट अ सीक्वेंस विथ डिस्टिंक्ट टर्म्स will never converge in R, will never converge to any real number in R. आएगी समझ में, धीमे धीमे थोड़ा वक्त लगेगा। अभी आज इसको मेरे लेक्चर के बाद दोबारा रिवाइज करो, फिर सभी 2-3 बार मैं कराऊंगा, तब आपको चीजें क्लियर होगी। क्योंकि अभी शुरू में क्या होता है ना, आपको जैसे मैंने ओपन सेट का इन आर, आपको वही ओपन इंटरवल ए भी दिखाई देता है, अभी आप इसके हैबिचुअल नहीं होते, बस इतना फर्क है। जैसे है ना कि जो जब वो ग्रुप थ्योरी वगैरह रिंग थ्योरी पढ़ते हैं, तो जैसे कहा जीरो, तो जीरो रियल नंबर का दिखाई देता है, ये नहीं देखा कि मैट्रिक्सेस का स्पेस है तो 0 0 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा, R2 का स्पेस है तो ऑर्डर पेयर 0 0 रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन का स्पेस है तो वहां 0 0 फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, पॉलिनोमियल का स्पेस है तो 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 पॉलिनोमियल। बस इतना फर्क है। ठीक है, बाकी चीजें बहुत आसान, आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ, ओपन सेट मालूम है, सिर्फ वेरीफाई कर दिया। सो नो नीड टू वरी, just keep patience. A sequence with distinct terms will never converge to any real number in R under discrete topology. यहां से ये एक ऑब्जर्वेशन मिला, अंडर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, अंडर डिस्क्रीट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ, क्यों, क्योंकि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ होगा, सिंगलेटन वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे ही आप करें 1/x को कन्वर्ज कर रहा है, तो सिंगलेटन एक्स वाले नेबरहुड में डिस्टिंक्ट टर्म वाला लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगलेटन एक्स के अंदर तभी लाई करेंगे जब सीक्वेंस के सारे मेंबर वैल्यू एक्स लेने लगे, या कुछ टर्म के बाद एक्स लेने लगे, सेम वैल्यू रिपीट होने लगे। बात समझ में आ रही है भाई? ये मान लो कोई सीक्वेंस है, उसके मेंबर सिंगलेटन 0 में डालने करे तो क्या होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के बाद सारे मेंबर्स क्या हो जाए, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद सारे मेंबर इटसेल्फ 0 हो जाए, सारे मेंबर सीक्वेंस के 0 वैल्यू लेने लगे, तब तो होगा कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। चौथे या चौथे के बाद के सारे टर्म्स के लिए हर एक मेंबर क्या हो, बस सिंगलेटन 0 के अंदर आने लगेंगे। तो इससे एक चीज और समझ में आती है कि किस तरह के सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगे। देखो, सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट टर्म तो इसमें कन्वर्ज नहीं करेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट टर्म इसमें नहीं कन्वर्ज करेंगे। लेकिन इससे एक समझ में आ गया कि सिंगलेटन पे प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर मैं कोई ऐसा सीक्वेंस लूं जो कुछ फाइनाइट टर्म के बाद जिस सीक्वेंस के सारे मेंबर सेम हो जाए, तो वैसे सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगे। और वैसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है सर आर पे जैसे पढ़ रहे हैं सर, तो ये आर को चेंज भी कर सकते हैं सेट पे सर, आर स्क्वायर या अरे भाई पहले अभी वेट करो, इतना पेशेंस रखो यार, एक ही बार में थोड़ा जंप लगाते हैं, धीमे धीमे ना। नहीं सर, अभी तो आप आर पे सारी टोपोलॉजी नहीं समझे, तो अभी तो आर के बाद हम इस पे जाएंगे ना। ठीक है, आपका बिल्कुल सही बात है, वो अभी हम आर्बिट्री टोपोलॉजिकल स्पेस में भी आएंगे, लेकिन पहले अभी रियल लाइन पे ही, तो रियल लाइन के तो आप जानते हो ना सारे सीक्वेंस किस तरह के हो सकते हैं। सीक्वेंस या तो सीक्वेंस विद ऑल डिस्टिंक्ट टर्म होगा, या कुछ रिपीटेड हो, ठीक है, या कुछ फाइनाइट टर्म के बाद सारे टर्म सेम हो जाए, आई मीन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस या कांस्टेंट सीक्वेंस उसका एक पर्टिकुलर केस है। ठीक है, so from here it looks that, see, in case of discrete topology, singletons are also open set, and since this definition should be true for all u containing x, so problem will be there when we have singletons, and in discrete topology always we have singletons. तो किस तरह का सीक्वेंस, क्वेश्चन ये है कि फिर डिस्क्रीट टोपोलॉजी में किस तरह का सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, है ना।
पहले भी रियल लाइन पे एक एक सीक्वेंस करके चलो, फिर अभी इससे पहले तो उसने एग्जांपल एक दिया था x इक्वल टू ABC, और उसमें देखा था xn इक्वल टू b जो लिया था वो ABC तीनों का कन्वर्ज कर रहा था, जो आप कह रहे हैं ना कि आर्बिट्री सेट पे कर सकते हो, इससे पहले वही तो एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, जिस पे टोपोलॉजी अब इससे पहले जो ये दिया था ना x इज इक्वल टू सेट ले लो ABC, आप पीछे के लेक्चर देख लेना, मुझे लगता है इससे जस्ट एक पहले लेक्चर में मैंने कराया था, और वहां टोपोलॉजी ये ले लो फाई और x, जो आपकी बात भी चलो मैं कर देता हूँ, A B ये ले लो टोपोलॉजी सिंगलेटन B, और ये B और C, ये टोपोलॉजी हाउसडॉर्फ नहीं है। इसमें देखो कि अगर एक सीक्वेंस ले लो xn इक्वल टू b फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n, सो दिस सीक्वेंस इज गोइंग टू कन्वर्ज टू A B एज वेल एज C, ठीक है ना, पुराने लेक्चर रिवाइज करो, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। नाउ क्वेश्चन इज दैट देन व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस विल कन्वर्ज इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी? So answer for this is that only eventually constant sequence will converge in discrete topology. Why? अच्छा चलो ये बताओ, ये सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस मींस after some finite terms every member of the sequence will be same, तो ये जो सीक्वेंस लिया 2 3 5 0 0 0, ये किसको कन्वर्ज करेगा? ये कन्वर्ज करेगा जीरो को, will converge to zero and not to any other real number, क्योंकि जीरो को कंटेन करने वाला एक सिंगलेटन जीरो भी होगा। मैं बल्कि इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, ताकि या बल्कि यहीं पे मिटा दूं, क्योंकि ये डेफिनेशन मैं चाहता हूं सामने लिखा रहे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डेफिनेशन तो आपको याद हो गया ना कि फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। चलो ठीक है, सो R पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी लो, डिस्क्रीट टोपोलॉजी R पे discrete topology. My claim is that only eventually constant sequence अच्छा ये बताओ डिस्क्रीट टोपोलॉजी हाउसडॉर्फ है कि नहीं था? हाउसडॉर्फ कराया था। ओनली इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस, हाउसडॉर्फ कराया था। क्यों? क्योंकि जब भी आप ए नॉट इक्वल टू बी लेके चलोगे तो एक सिंगलेटन ए ऑलवेज मिल जाएगा, एक सिंगलेटन बी मिल जाएगा, जिनका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या हो, डिसजॉइंट, ठीक है। कोई भी स्पेस है, यहाँ मान लो रियल नंबर ले लिया, बट दिस इज ट्रू इन आर्बिट्री टोपोलॉजी, आई मीन ऑन एनी सेट इक्विप्ड विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, नॉट ओनली इन आर, तो मैंने इसलिए सिंबल से और बी ले लिया। सो माय क्लेम इज दैट ओनली इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस। अच्छा ये हाउसडॉर्फ है तो या तो कन्वर्ज नहीं करेगा, और कन्वर्ज करेगा तो इसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक, है ना। जैसे देखा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट टर्म्स विल नेवर कन्वर्ज। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स, से 2 3 5 और इसके बाद सारे टर्म्स ले लो 7, तो ये आपका x1 है सीक्वेंस का पहला टर्म, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, x4 की वैल्यू 7, x5 की वैल्यू 7 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये ऐसे चल रहा है। So my claim is that this eventually constant sequence, why it is eventually constant? Because after some finite terms every term of the member is same, so those type of sequence are called eventually. My claim is that this sequence is going to converge to 7 and not to any other real number. मेरा claim है कि this sequence is going to converge to 7 and not any two other real number. Now how? So look at all, so okay, my claim is that this claim is that the sequence 2 3 5 7 7 7 and so on, this is going to converge to 7. So look at all open set containing 7, look at all open sets with respect to discrete topology, because we are talking with respect to discrete topology containing 7. सबसे पहले उनको लिस्ट कर लो, स्टेप वाइज चलो। So you can see that singleton 7 is also an open set containing 7. ये भी 7 कंटेन करने बहुत से, ये भी 7 से लेकर 10 ले लिया क्लोज्ड इंटरवल, ये भी इसके अंदर भी 7 है, आई मीन 6 to 10 ले लिया। ऐसे बहुत से आप ओपन सेट बना सकते हो, ये ले लिया 5 to 10, या उनका यूनियन ले लो ऐसे कुछ 11 to 12, इन सब के अंदर 7 है। आई हैव लिस्टेड सम ऑफ देम,
But as per definition, for each of the open set, all these are open set because we are in discrete topology. Every subset here is open. Every subset of R here is open because discrete topology is the largest topology. That is your power set, and all these can be generated by union of singleton, and singletons are open. So problem is there that at singletons, see, अगर देखो इन सब में एटलीस्ट ये सारे सेट्स होंगे तो सिंगलेटन से जनरेट में, तो अगर आप सिंगलेटन में दिखा दो कि सिंगलेटन के अंदर, सिंगलेटन के लिए कम से कम एक एन नॉट मिल गया जिसके अंदर सारे सीक्वेंस के मेंबर लाइक करेंगे, आई मीन 1 by n बिलोंग्स टू, सॉरी 1 by n, माय क्लेम इज दैट xn बिलोंग्स टू सिंगलेटन 7, देयर एग्जिस्ट सम n नॉट such that for every n greater than equal to n naught, this you have to claim, कम से कम एक n naught मिल जाए, such that for all n starting from this n naught or greater than n naught, every member of the sequence start lying within this neighborhood. तो अगर इस सबसे छोटे वाले में दिखा दिया तो ये सब तो उसी का यूनियन लेकर जनरेट होंगे, इस तरह के सिंगलेटन्स का कंटेनिंग 7, तो उनके अंदर भी होगा। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, मेरा क्लेम है कि एन नॉट जो है ना, एन नॉट जो होगा वो कितना होगा, देखो पहला टर्म 2 नहीं है इसके अंदर, इस 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन चौथे टर्म ऑनवर्ड्स एन नॉट की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो x4 की वैल्यू कितनी आएगी, x4 की वैल्यू कितनी है आप बताएं, x4 कितना, चौथा टर्म क्या है 7, 7 बिलोंग्स टू सिंगलेटन 7, फिर अब बताओ n की वैल्यू 5 रख लो, x5 कितना आ रहा है, वो भी 7 है, 7 7 बिलोंग्स टू सिंगलेटन 7, so I can say that there exists n naught, the value of n naught for 4 or 4 onwards, for every n the members of sequence xn start lying 7. इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये आपका एक पॉन्ड है और मान लो लेक है और यहाँ से आप स्टोन थ्रो कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, अगर आप इसको टाइम स्केल पे देखो तो एक पर्टिकुलर आप यहाँ से स्टोन थ्रो कर रहे हो, कभी इधर गिर रहा है कभी इधर गिर रहा है, लेकिन 10 मिनट बाद या 4 मिनट बाद आपके सारे स्टोन इसके अंदर गिरने लगे, कुछ आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, हालांकि मैं यहाँ फिजिकल एप्लीकेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बट यू कैन थिंक लाइक दिस that after certain time slot every members of the sequence start lying within this area, so you can consider that area as a set, ठीक है, तो वो मैंने दिखा दिया। now claim is that why not this sequence converges to 8, my claim is that this sequence is not going to converge to 8, if this eventually constant sequence is going to converge to 7, तो 8 को कंटेन करने वाला सिंगलेटन 8 भी तो होगा। अब ये बता दो क्या xn के मेंबर सिंगलेटन 8 में होंगे, क्या आप ऐसा n कोई बता सकते हो, such that for all n greater than equal to n naught sequence of the member xn will start lying within singleton n, क्या बता सकते हो? नो सर, ऐसा कोई n मिलेगा ही नहीं, क्या ऐसा कोई n नॉट मिलेगा? भाई x1 की वैल्यू 2 है, 2 भी इसके अंदर नहीं आ रहा सिंगलेटन 8 के अंदर, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, so apart from 7 it is not going to converge to any real number. So only sequence which will converge in discrete topology is eventually constant sequence. And remember, constant sequence is a particular case of this. If I put all the member as 3 3 3, then this is going to converge to 3. I mean constant sequence क्या होता है, in which xn is equal to c for every n belonging to n, यही तो होता है constant sequence कि सारे values क्या हो, सेम हो जाए। So constant sequence is particular case of eventually constant sequence, ठीक है। और कोई अगर आपका डाउट हो तो दो तरह के सीक्वेंस मैंने करा दिया आपको। व्हाट अबाउट सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप -1 टू द पावर n, देखो सीक्वेंस या तो सारे टर्म डिस्टिंक्ट होंगे या कुछ रिपीटेड होंगे इनफाइनाइट टाइम्स, या कुछ इस तरह के होंगे कि आफ्टर सम फाइनाइट टर्म्स ऑल टर्म्स आर सेम। सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस वन एंड देन लेटर ऑन वी विल जनरलाइज द रिजल्ट। आ रहे समझ में आप लोगों को? एक मिनट जरा होल्ड करें। ठीक है,
चलो यहीं पे एक और एक्सप्लेन करते हैं, व्हाई नॉट सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप विल कन्वर्ज। अगर देखो इसकी बात करो ना, तो मैं यहीं पे आपको समझा दूं। आज मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, एक्सप्लेन किया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये इन एग्जांपल से क्या होगा ना, एक्चुअली होता क्या है ना, देखो आप ही के साथ में जब हम लोग भी पढ़ते थे तो यही प्रॉब्लम होती थी। जब स्टार्टिंग थी तो स्टार्टिंग में हम लोग भी जैसे ओपन सेट का हमें ओपन इंटरवल ए बी दिखाई देता था, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो चुके थे आर में अंडर यूजुअल मेट्रिक पढ़ते पढ़ते, तो वही देखते थे। अब मालूम चला क्लोज्ड इंटरवल भी ओपन होता है अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो ठीक है। तो वो चीजें आपको धीमे धीमे समझ में आएगी। तो मैंने इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मुंकरेस में क्या है ना, वो तो स्टैंडर्ड बुक है, वो उन्होंने क्या किया, आपको एक एग्जांपल लिख के 2 लाइन चल जाते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आप जब तक इस तरह के एग्जांपल लेके एनालाइज नहीं करोगे आपको। नाउ व्हाई नॉट सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप, ये तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये भी एक सीक्वेंस है। सो रिमेंबर दैट -1 टू द पावर इज नॉट इवेंचुअल कॉइल। तो इसके मेंबर्स क्या होंगे, पहला मेंबर -1 होगा, n = 1 रहेगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा। मेरा क्लेम है, क्या आपको कोई लगता है कि ये सीक्वेंस किसी को कन्वर्ज करना चाहिए? चलो सपोज करो कि ये सीक्वेंस, आपको ये नंबर क्लेम करो कि जिसको कन्वर्ज करा, मैं डिस्कार्ड करके दिखाता हूँ। डिस्कशन है ना, आप बताओ ना, आपको क्या लग रहा है, फेवरेट क्या लग रहा है, किसको कन्वर्ज करना है? चांस लग रहा है 1 या -1 को, इज इट? दोनों को, बट 1 ले लीजिए आप। हाँ चलो पहला 1, मतलब ऐसा लग रहा है कि 1 और -1 कन्वर्ज करेगा, हालांकि दोनों को नहीं कन्वर्ज करेगा। ओके, इनका क्लेम है कि 1, क्लेम है कि ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लेम करो कि दिस सीक्वेंस xn, लेट मी कॉल दिस एज yn, क्योंकि ऊपर नोटेशन ले रखा है, सो yn विल कन्वर्ज टू 1। तो अगर 1 और r पे अंडर डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो ये बताओ 1 को कंटेन करने वाला क्या हुआ, सिंगलेटन 1 को कंटेन, ये भी तो ओपन सेट है। ओपन सेट तो बहुत सारे होंगे, ये भी है, 0 से 2 भी है, ओपन इंटरवल 0 से 2 भी है, 0 से 2 यूनियन 3 से 4 भी है। इस तरह के आप यू कैन मेक अनकाउंटेबल सेट, बट एज पर डेफिनेशन फॉर ईच ओपन सेट u containing x, for each open set u containing x, you have to find some n naught such that for all n greater than equal to n naught, the members of sequence start lying within that neighborhood। ये डेफिनेशन करता है फॉर ऑल एन। प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे जब मेरा क्लेम है कि क्या ये सीक्वेंस yn के मेंबर सिंगलेटन 1 में है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू, कैन यू लिस्ट मी एटलीस्ट 1 n नॉट? क्या आप मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जिसके बाद सीक्वेंस के सारे मेंबर इस 1 में आ गए? अगर मैं n नॉट की वैल्यू 2 रखता हूं तो n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 2 पे तो चलो एक y2 है, y2 तो है सिंगलेटन 1 में, लेकिन फिर y3 पे फेल हो जाए, क्योंकि y3 की वैल्यू तो -1 है ना। -1 सिंगलेटन 1 के अंदर नहीं होगा, y3 तीसरा टर्म क्या है, -1 है। और ये डेफिनेशन क्या कहता है कि जो एक बार n नॉट मिल गया, उसके बाद के सारे n के लिए ट्रू होना चाहिए, उसके बाद के सारे n के लिए yn शुड बी मेंबर ऑफ दैट नेबरहुड, आई मीन ओपन सेट। So this is the reason that this is not going to converge to 1 and this is not going to converge to -1। तो 3 तरह के सीक्वेंस होंगे, या तो ऐसा होगा जिसके सारे टर्म्स रिपीटेड होंगे, कुछ टर्म्स रिपीटेड होंगे इनफाइनाइट टाइम, जैसे -1 इनफाइनाइट टाइम्स, या 1 1, या तो कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें आफ्टर सम फाइनाइट टर्म्स ऑल टर्म्स आर सेम, और अ सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट टर्म। तो मैंने तीनों तरह के आपको ये भी रिजेक्ट कर दिया, डिस्टिंक्ट टर्म भी रिजेक्ट कर दिया, ये सही है। ओनली इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस इन आर अंडर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो आज का लेक्चर मैं यही एंड कर रहा हूं, ये आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल मैंने कराया। कल इसी को मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा जैसे पढ़ लेंगे आप लोग। कल इसी को हम लोग को फाइनाइट टोपोलॉजी पे देखेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजी पे देखेंगे, और कुछ और सीक्वेंस और स्पेसेस चेंज करके देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर चीज रटते नहीं है, कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करो, कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे 4-5 एग्जांपल सफिशिएंट होता है किसी को। अभी मैंने हाउसडॉर्फनेस अभी ये नहीं बताया कि in next class I will discuss that if we keep our topological space with this Hausdorff property, then this convergence is again going to be unique। तो वो हाउसडॉर्फ से कैसे करोगे वो भी मैं कंपेयर करके दिखा दूंगा कि मतलब क्यों वो यूनिक होता है। हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी रखते ही टोपोलॉजिकल स्पेस पे क्यों लिमिट यूनिक हो जाता है, कैसे वो डिसजॉइंट की कंडीशन यूज करेंगे और कन्वर्जेंस को यूज करके। सो दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो लेकिन आज का लेक्चर आप लोग रिवाइज कर लेंगे, कोई छोड़ेगा, क्योंकि मैं कल पूछूंगा कितने लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। सर ये बुक में कौन से पेज पर है सर? बुक में देखना पड़ेगा, कल वो उसी 100 के आसपास है। चलो मैं अभी मुझे कहीं कुछ काम है, कल मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप लोग दोबारा